یسوع مسیح کی خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا ہے اپنا رشتہ تعلق اس کے ساتھ قائم کرو اور اسی کے ساتھ مضبوط بناؤ۔ آج میں اپنے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو، اس میں بھی شامل ہوں، اونچی جگہ تعلق رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بڑے سے بڑے ہستیوں کے ساتھ آپ تعلق بنائیں، قائم رکھیں، لیکن مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری نظروں میں، ہمارے ایمان کے مطابق سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے قادر مطلق، با اختیار ہمارا خالق، مالک اور رازق جو ہے وہ آسمان کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہر ایک مسیحی کو اپنا تعلق، رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ مضبوط بنانا چاہیے۔ اس سے اونچا اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے رشتے اچھے نہیں ہیں، وہ ناچیز ہیں، نہ بالکل نہیں۔ دنیا کے سارے رشتے بھی مقدس ہیں۔ مقدس رشتوں میں بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، یہ سارے رشتے جو ہیں مقدس ہیں، یہ بھی بات ہے۔ لیکن ایک نہ ایک دن ہم نے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں یاد کروں گا، جو خداوند کے زندہ کلام کو سن رہے ہیں وہ سارے اپنے اپنے رشتوں پر جب غور کریں گے تو آج کسی کا باپ نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کسی کی ماں نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کسی کے بھائی نہیں ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کسی کی بہنیں نہیں ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کسی کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ لیکن جو مالکوں کا مالک ہے، سب سے بڑا ہے خداوند یسوع مسیح، وہ ہر وقت جو اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھتے ہیں وہ انہیں گلے لگا کے رکھتا ہے، اور ہر دکھ، ہر سکھ میں اپنے لوگوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور نہ کبھی چھوڑے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے خدا کے سارے وعدے، آج ہم دیکھیں گے کہ سچ مچ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں۔ کہ تم میرے ساتھ رشتہ قائم کرو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب، اس کی 20 آیت ہم دیکھیں گے۔ متی رسول کی مات لکھی تھی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 28 باب، اس کی 20 آیت۔ جو بھی نکال لے پہلے وہ تلاوت میں رہنمائی فرمائے۔ 28 باب، اس کی 20 آیت۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کن کو یہ حکم دو کہ جن کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک
अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर चुके, उन तक मेरे कलाम को लेके जाओ, मेरी बातें उन तक पहुंचाओ। और फिर खुदा का वादा किया है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यदि ये रिश्ता, ये ताल्लुक कभी भी नहीं टूटेगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के साथ रिश्ता कायम करने के लिए आपको यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। ज़बूर 2 में 2 में फरमाते हैं कि बेटे को चूमो तो निजात पाओगे। बेटे को चूमो, इसका मतलब है कि उसके साथ रिश्ते को मजबूत बनाओ। दुआ, इबादत, कलाम मुकद्दस पढ़ना और दिल से कबूल करके उस पर अमल करना, ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। जी, यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। तो अजीजों, जब राह, हक और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, यानी वो रास्ता जिस पर हर एक ने चलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया कि वो रास्ता मैं हूं। हक, सच्चाई, सच्चाई का रास्ता कौन है? सच्चाई का रास्ता भी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके जरिए हम चलकर बाप के पास जाएंगे। और जिंदगी भी खुदावंद यीशु मसीह है। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी देने वाला कौन है? और आज के दिन तक हमें जिंदा किसने रखा है, इस पर जरा सारे गौर करें। और जिसने हमें आज के दिन तक जिंदा रखा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता किसके साथ कायम रखना है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ। याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत, याकूब रसूल का खत उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। यहां पे याकूब रसूल ने एक शर्त रख दी हुई है, एक कंडीशन रख दी है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। आज दुनिया में 6 अरब से ज्यादा लोग मौजूद हैं। हर एक का रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम नहीं है। कोई किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो याकूब रसूल फरमाते हैं कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। मतलब कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम करते हैं, हम उसे अपना आप उसके हाथों में दे देते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर वो हमारा आसमानी बाप है। फिर हम उसके बेटे और बेटियां हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत, कि खुदा ने हर इंसान को अपनी शबीह पे बनाया। आप खुदा ने तो बड़े लाड प्यार के साथ इंसान को तख्लीक कर दिया, और खुदावंद
की सोच भी ये थी कि ये सारे मेरे साथ अपने रिश्ते तल्लक को कायम रखेंगे, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद इंसान जो है वो दाएं बाएं होना शुरू हो गए, और ये बुरी बात है। ये खुदा उसके दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है, ये भी खुदावंद का वादा है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 27 और 28 आयत लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे अजीज, हम किसी दूसरे माबूद की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस पे फोकस रखेंगे, क्योंकि हम मसीही हैं, हमारा ईमान बाइबल मुकद्दस पे है। तो हमारा खुदा में यीशु मसीह क्या फरमाता है, ये एक बड़े ताल्लुक को जाहिर करता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और खुदावंद की भेड़ें कौन हैं? जो खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, उसकी हमद और उसकी सताइश करते हैं, खुदावंद के साथ बात करते हैं और खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो खुदा की भेड़ें हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। जो लोग थोड़ा वक्त किसी गांव में रह चुके हैं या गांव के रहने वाले लोग हैं, जो अक्सर माल मवेशी पालते हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि चरवाहा जो है, भेड़ें 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, चरवाहा एक ही होता है उनका। वो आगे आगे चलता है, जिस जगह पर भी उस चरवाहे ने अपनी भेड़ों को लेके जाना होता है, और सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही होती हैं। जिस तरफ को वो मुड़े, सारी भेड़ें उस तरफ को मुड़ जाती हैं। क्यों? कि सारी भेड़ें, उन्हें पता है कि हमारा चरवाहा ये, हम इसके साथ रहेंगे, इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो फिर हम महफूज हैं, हर किस्म के गोश्तखोर जानवरों से महफूज रहेंगे। तो खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। तो कितनी अच्छी बात है, उन लोगों के लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि जिन्हें खुदा जानता है। आज अगर खुदा मुझे जानता है, आप सबको जानता है, सब खुदावंद की आवाज सुनने वालों को जानता है, तो ये समझे कि हम सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यह है सबसे मजबूत रिश्ता। जबकि दुनिया में रहने वाले को बड़े से बड़ा, हम आजकल के लोग जिन लोगों के साथ अपने रिश्ते ताल्लुक बनाने में लगे हुए हैं, जर्नलों के साथ, कमांडरों के साथ, सदर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, वजीरों के साथ, जब उनका टेनोर खत्म हो जाता है तो रिश्ते ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक वो रिश्ता है कि जो अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता, और खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है, आज सारे सुन लें, कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। दुनिया की कोई भी ताकत
खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से खुदा के लोगों को कभी छीन नहीं सकता, मतलब कि उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता, उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। यूहन्ना रसूल बताते हैं, पहला यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो उससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। आमीन। यहां पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अपने आसपास पूरी दुनिया के लोगों की तरफ हर कोई, हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो जब भी कोई बात करते हैं तो आसमान की तरफ इस तरह हाथ उठाते हैं। वो अपने अपने कीदे के मुताबिक जो भी हो, वो कहते हैं कि वो खुदा पूरी दुनिया के निजाम को चला रहा है। वो ये नहीं कहते, अपने अपने मबूदों को नहीं कहते कि हमारे मबूद दुनिया के निजाम को चला रहे हैं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं कि वो पूरी दुनिया के निजाम को चला रहा है। और एक बात, ये सबके ज़बान ज़दे आम लफ्ज़ है, गॉड ब्लेस यू। पता नहीं वो लोग फिर इस पर अमल क्यों नहीं करते कि अगर खुदा ही बरकत देता है तो फिर इबादत के लायक भी वही खुदा है। और जब इबादत की बारी आती है फिर सब अपने अपने मबूदों की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल कहते हैं कि जिनका ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुए हैं, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। गॉड ब्लेस यू सारे कह लेते हैं। और फिर जिसको घर में कोई भी नहीं पूछता, वो मसीहों की मुखालफत करने पर चल पड़ते हैं। वो मसीही लोगों को तंग करना शुरू कर देते जहां पर वो अकलियत में है, थोड़ी तादाद में है। दो चार रुपया इकट्ठे करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, तो भाई फिर ये भी ना कहा करो कि गॉड ब्लेस यू। फिर ये भी कहना छोड़ दो कि दुनिया का सारा निजाम खुदा चला रहा है। हम मसीही लोग जो हैं, हम तो उसी खुदा की इबादत करते हैं जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत उसका 5 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है। गलतियों 5 बाब उसकी 25 आयत लिखा है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। खुदा का रूह कौन है? यीशु मसीह।
تو اگر ہم اس کے سبب سے زندہ ہیں تو ہمیں روح کے موافق چلنا بھی، یعنی پھر خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے تعلق کو مضبوط رکھنے کی بھی ضرورت ہے. وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں، پھر یہ دوگلا پن ہوگا کہ اگر خداوند یسوع مسیح ہمیں زندگی دیتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے تعلق کو قائم بھی نہ رکھیں. اگر وہ زندگی دیتا ہے تو پھر ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، روح کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھیں، ہر وقت اس کی باتوں پر دھیان دیں. تو آخر میں ایک حوالہ اور پڑھوں گا، پھر اس کے ساتھ ہی ختم کروں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا خط، اس کا 13 باب، اس کی 5 آیت. پولس رسول کا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا خط 13، اس کا 13 باب، اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. آمین. یہ دنیا کے کسی معبود نے بھی، جو ان کو مانتے ہیں، کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا ہوا. یہ وعدہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو. مطلب کہ یہ دنیا کی چیزوں، روپیہ، پیسہ، اچھے اچھے گھر، اچھی اچھی گاڑیاں، صرف ان کی تلاش میں نہ رہو. جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. نہیں، جو خدا نے تمہیں دے دیا ہے، جب دن چڑھتا ہے تو خدا اپنے لوگوں پر نظر کرتا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی ننگا تو نہیں. خدا ہر ایک کو کھانے کے لیے بھی مہیا کرتا ہے، پینے کے لیے بھی مہیا کرتا ہے، پہننے کے لیے بھی مہیا کرتا ہے. ایون خدا پرندوں چرندوں کو بھی وقت پر کھانا دیتا ہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ اسی پہ قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. میرے عزیز، آج میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارے اپنا اپنا رشتہ تعلق جو ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اونچا ہے، جو مختار کل ہے، خداوند یسوع مسیح، اپنا تعلق رشتہ اس کے ساتھ بنا لو. وہ تمہیں اس دنیا میں سرفرازی بھی دے گا اور تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، نہ اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی اس کا رشتہ آپ کے ساتھ قائم رہے گا. وہ آپ کو آسمان کی بادشاہت میں لے کے جائے گا. تو خدا آپ سب کو، مجھے اور آپ کو، آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اسی ایمان میں قائم رہنے کا گہرا فضل عطا فرمائے. آمین.